नमस्ते दोस्तों। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम, रिजवान और सरफराज नो डाउट अमेजिंग क्रिकेटर्स हैं। फील्ड पे लेजेंड सही है, शेर हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही पुअर है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स जो उन्होंने फील्ड पे बोले हैं। उनके इंटरव्यूज मजेदार है और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा हमें क्या नहीं करना चाहिए जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो लेट्स वॉच दिस वीडियो। Bowling attack in the world in limited overs cricket. Where do you think you need to improve? Look, always improve improve in the cricket. You never satisfy. LPL very helpful to get good form for the next Asia Cup. Yes, definitely. When we're playing a lot of cricket, you need अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। form. You need form. So they help me a lot. That you learn a lot when you are in the pitch. You so in the batting you see different quality of bowling against quality of bowling. So definitely we are relieved. We are trying to good cricket, but the credit to Netherlands cricket. Look, India-Pakistan is always a very, very anticipated match, but we keep saying this again and again. You need to focus on. My answer also the same. ठीक है, ले ली। अब उन्होंने माशाल्लाह सबने बना बना के व्यूज़ लिए, खूब पैसे बनाए माशाल्लाह। चलें कि मेरी वजह से किसी का भला होगी, अच्छी बात है। सरफराज, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि पाकिस्तान की टीम ने ये मैच जीता। आप क्या समझते हैं कि इसमें आपकी परफॉर्मेंस भी थी और अल्लाह का करम भी था? ये परसेंटेज कितनी थी? 50-50, 40-60? सर देखें, मैं समझा नहीं सर आपका सवाल परसेंटेज के हवाले से। बस आपकी कप्तानी में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, फिर एशिया कप से हम बांग्लादेश से हार के फाइनल से बाहर हुए थे, और इस वर्ल्ड कप में भी क्या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बज़ाहिर हम ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, न्यूजीलैंड से हारे, इंग्लैंड से हारे। पाकिस्तानी टीम का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि स्टैट्स में तो यही दिखाई दे रहा है। Next question. Explain the difference. I mean, on Sunday you weren't very good. Today you're excellent. I think today was the difference was our bowling and fielding. But what did you do to make them better? The fielding in particular. What did you concentrate on to make it better? I think actually we do not fielding. You know, we had a rain other day, so actually we do nothing. just so that's why players are very boosted up for the yesterday meeting. So everything's right on the. What we talk, what we did, how many meetings, how many days, what kind of situations, all finished. Just only next 4 hours now. और यहाँ पे सेकंड स्टार चाहिए आप इंशाल्लाह। उसके लिए सिर्फ दिमाग में चैंपियन टीम just put him in mind, that's it. We need a second star. Champion team is never afraid of the results. They know just process. We will keep that process what we did in the 11 matches, and we are the champion inshallah. Okay, guys. What we implement ahead of the Champions Trophy? No, we don't want to. Basically, what we are here and what we're gonna do, we're gonna follow that. And how can we make a champion our team? This is only for first time. I'm not here to follow the world what they're gonna do, what the other countries doing that. I'm not here to, and our team is not here to follow these things. Why and we are and how we can. This is our first time. Jason's obviously just new into the role as white ball coach. What's the message been from him ahead of the series? Jason always are helpful for us because we have seen him in before the red balls. But here, we have a Tim and Jason. They know about the condition. They give us lots of information. But hopefully they're gonna some more we get from him. Do you know? Oh, just one more. Okay. Sorry. Do you know yet whether Jason, obviously it's been a quite quick change from Gary to Jason, whether he'll be coach of the white ball team beyond the series? Do you know? This is some things, everything can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already with Jason. Lots of people are talking with them. They're going that. But what the Gary did, and this is not my topic, and because this is only for management and BCB. That one.
तो दोस्तों, जैसा हमने देखा, बड़े ही मजेदार वीडियोस थे, फनी, रियली रियली अमेजिंग। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमें क्या नहीं करना चाहिए जब हम कम्युनिकेट कर रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं रिजवान की। तो वो क्या करता है कि ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सेंटेंसेस बोलता है, वो कुछ भी बोलता है। समटाइम्स ही सेड आई थिंक स्कोर बोर्ड इज माई फ्रेंड। तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको क्या नहीं करना है कि रैम्बल नहीं करना, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सेंटेंसेस नहीं बोलने, यू नीड टू कीप इट सिंपल। और जो आप कहना चाहते हैं क्लियर शब्दों में बोलें, कुछ फैंसी वर्ड्स ऐड किए हुए बिना। सेकंड मिस्टेक ऑफ कम्युनिकेशन, मिक्सिंग लैंग्वेजेस मिड सेंटेंसेस। ये गलती करता है सरफराज। उससे जब कुछ पूछा जाता है तो इंशाल्लाह आई थिंक बॉयज प्लेड वेल, भाई या तो आप उर्दू में बोलो, हिंदी में बोलो या फिर इंग्लिश में बोलो, वो मिक्स कर देता है। तो ये इस गलती से बचना है हमें। और तीसरी गलती जो बाबर करता है, वो क्या करता है, क्वेश्चन ही अवॉइड कर देता है। उससे पूछा कुछ और जा रहा होता है कि क्या स्ट्रेटेजी रही मैच के दौरान आपकी, और वो बोलता है कि हमने ट्रेन अच्छा किया, बांग्लादेश में हम गए, वहां पे बारिश हो रही थी, बारिश के बीच में हमने गेम खेला और इसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। तो उसके ऊपर क्या होता है, बाबर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आई थिंक उसको थोड़ा पब्लिक फेयर है, और जब भी वो कम्युनिकेट करता है देखना आप उसके पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट इज नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट इज नॉट अबाउट हिंदी और इंग्लिश और उर्दू। ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है। इसके लिए उसको क्या करना है कि उसको अपना काम और अपना डिमीनर है उसको मेंटेन करके रखना है, और उसको जो बोलना है वो बहुत ही शांत तरीके से धीरे धीरे बोलना है। उसको प्रेशर फील होगा इनिशियली, जब भी कोई बंदा होता है कम्युनिकेट कर रहा होता है और पब्लिक फियर होता है उसको, तो उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करके उसको ओवरकम किया जा सकता है। बाबर मेरा फेवरेट बैट्समैन है, ऑफ कोर्स आफ्टर विराट कोहली, बट ये मिस्टेक वो बहुत ही जनरली करता है वो। नाउ आई एम गोइंग टू सजेस्ट कि हमें क्या करना चाहिए। अगर क्रिकेटर्स की बात करूं तो उनको क्या है कि उनके साथ में हमेशा ये होता है कि जब भी उनका इंटरव्यू होता है और पोस्ट मैच उनके इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, तो उसमें सिंपली सेम क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। 60-70% क्वेश्चन सेम होते हैं। अगर कैप्टन को बुला के पूछा जा रहा है कि व्हाट यू थिंक, हाउ वाज द मैच, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि जो की फ्रेजेस हैं उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि 60-70-80% टाइम्स सेम क्वेश्चन उनसे पूछा जा रहा है। और की फ्रेजेस प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहां पे जाके रैम्बल नहीं होंगे और ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सेंटेंसेस कुछ भी नहीं बोलेंगे वो। दूसरा है कि स्लो डाउन एंड ब्रेथ। इसमें रिजवान में ये गलती है कि वो बंदा स्लो डाउन होता ही नहीं है, वो रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह दौड़े ही जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको थोड़ा धीरे बोलना चाहिए और सांस लेके, और उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। कॉन्फिडेंस तो उसमें कूट कूट के भरा हुआ है, बट उसको धीरे बोलेगा और सांस लेके बोलेगा, और तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होगा। तीसरा है स्माइल एंड ओन इट। दिस इज ओनली फॉर द बाबर आजम, क्योंकि सरफराज बहुत स्माइल करता है बट बाबर स्माइल नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत टेंशन फील करता है वो। तो उसको क्या करना है कि उसको स्माइल करते हुए और अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को कम्युनिकेट करना है, और अगर धीरे बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज आई होप ये वीडियो कुछ नॉलेजेबल, कुछ प्रीची हो गया, बट लॉट ऑफ फन हमने देखा क्लिप्स में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी। बाय बाय, टेक केयर।